یہ کوئی کہانی یا لفاظی نہیں ہے، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ الطاف حسین کے خلاف گواہی دینے کے لیے لندن میں بہت اہم شخصیت پہنچنے والی ہے، اور وہ پہنچ کر یہ بتانے والی ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں کون تھا اور کس طرح سے اس میں الطاف حسین صاحب شامل ہے۔ کراچی صرف شہر نہیں، یہ سیاست کا میدان جنگ ہے۔ یہ کوئی مزاحیہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی بات ہے، اور اس حوالے سے ایک درخواست بھی دے دی گئی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ اٹھنے والے دھواں کا جہاں تہلکہ انگیز خبر آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، وہیں پر ہم آپ کو بہت ہی اہم باتیں آج کی ردات سنانے والے ہیں۔ کیوں ایک اور بندہ خاص طور پر عمران خان کے لیے گواہی دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور اس کے پس منظر میں کیا حقائق چل رہے ہیں۔ آج کراچی میں پڑنے والے ایک چھاپے نے کن رازوں کو فاش کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کتنی بڑی ایکسپورٹ ہماری ہوئی ہے۔ آج کے پروگرام میں یہ تمام انتہائی اہم خبریں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، لیکن ان سب کے لیے ہمیشہ کی طرح شرط یہی ہے کہ ڈریے نہیں، جھجکے نہیں، گھبرائیے نہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج اس رواں سال کے آخر لمحے میں ہمارا یہ آخری پروگرام ہے، اور شاید آپ جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو 2026 کا سورج طلوع ہو چکا ہوگا۔ مجھے نہ جانے کیوں آج کی کہانی اور آج کی خبر دینے سے پہلے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور وہ شعر اسی سال نو کے حوالے سے ہماری طرف سے مبارکباد کے طور پر رکھیے گا، اور وہ شعر یہ ہے کہ کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا نہیں، کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا نہیں، دیکھنا انہیں غور سے، کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا نہیں، دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی، جنہیں راستے میں خبر ہوئی، یہ رستہ کوئی اور ہے۔ یہ پوری کہانی کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایم کیو ایم سے جنم لینے والے شخص اور ایم کیو ایم سے ہی پنپ کر اپنا نام بنانے والے لوگوں کو یکدم 2016 میں یہ خیال آتا ہے کہ بھائی یہ جو راستہ ہے، جس ہم راستے پر چل رہے ہیں، یہ راستہ کوئی اور ہے۔ لیکن جب کبھی بھی معاملہ ایسا ہو کہ کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا نہیں، دیکھنا انہیں غور سے، تو ہم بھی بڑے غور سے اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب 2016 سے پہلے تک جس طریقے سے اس وقت کے ایم کیو ایم کے بانی اور اس وقت بھی جو ایم کیو ایم کے بانی اور رہنما تھے الطاف حسین صاحب کے متعلق کہا کرتے تھے 2016 سے پہلے، اور پھر 2016 کے بعد وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس بار جو انہوں نے اتوار کے روز ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے الطاف حسین صاحب پر ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے جہاں الزامات لگائے اور جہاں پر ان کا لب و لہجہ گالم گلوچ تک پہنچا، اور پاکستان کے نیشنل میڈیا نے جس طریقے سے اسے کور کیا تھا، اس کے بعد سے یہ موضوع اب بیٹھ ہی نہیں رہا۔ آج 2025 کا آخر دن ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو شاید 2026 کا سورج طلوع ہو چکا ہوگا۔ 2025 کا یہ اختتام پورے 10 سال کے بعد، یعنی 2016 مارچ میں پی ایس پی کے وجود میں آنے، اور اس 10 سال میں صورتحال انتہائی تبدیل ہو چکی ہے۔ 2016 میں جب پی ایس پی کے رہنما اور اس وقت ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال صاحب جب مارچ میں آئے تھے تو اس وقت ایم کیو ایم کے خلاف ایک شدید آپریشن ہو رہا تھا۔ ایم کیو ایم اس وقت اپنے اندرونی انتشار کا شکار جہاں تھی، وہیں پر اس کے اوپر ہونے والے آپریشن سے بھی کئی باتیں سامنے آ رہی تھی۔ اس وقت الطاف حسین صاحب اتنے فیوریٹ تصور نہیں کیے جا رہے تھے کہ جتنے فیوریٹ اس زمانے میں عمران خان تھے۔ خیر، اس ساری صورتحال میں 10 سال کے بعد اس وقت جب وہ آئے تو اس وقت انہیں نیشنل میڈیا مکمل طور پر کور کر رہا تھا، اور پی ایس پی میں لوگ جوک در جوک شامل ہو رہے تھے۔ ایم کیو ایم سے پوچھنے والے لوگ اس وقت مسلسل پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے، اور پریس کانفرنس کرنے کے بعد پھر وہ شامل ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ آج ایک اور وکٹ گرتے ہیں۔ مگر اس 10 سالوں میں شاید بہت کچھ بدل چکا ہے۔ یہاں کا سیاسی ماحول اور یہاں پر کیے جانے والے تبصروں میں کافی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہے۔ 2016
तक, उस वक्त तक डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का जब इल्ज़ाम आयद किया जाता था तो उस वक्त तक बहुत सारे शवाहिद और बहुत सारी चीज़ें सामने मौजूद नहीं थी। लेकिन 2026 में जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं और आप जब ये प्रोग्राम अब देख रहे हैं तो इन 10 सालों में बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। और उस तब्दीली की सबसे अहम बात ये कि 2026 तक जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त तक अल्ताफ हुसैन साहब का लंदन में होने वाले केस में उन्हें बरी किया जा चुका है और पाकिस्तान में होने वाले जो इमरान फारूक का केस में उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया है। अब मामला ये है कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ये कहा कि जनाब ये मुकदमा होना चाहिए और इमरान फारूक के बच्चों को वहां पर उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करना चाहिए, तो किसी सहाफ़ी ने मुस्तफ़ा कमाल साहब से टीवी इंटरव्यू में पूछा कि आप ये केस क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये वसाइल नहीं है। 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और जब उन्होंने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस वक्त की FIA ने मुस्तफ़ा कमाल साहब से पूछा था कि भाई आपके पास कोई इस हवाले से शवाहिद मौजूद हैं, तो उन्होंने मना कर दिया था कि जनाब मेरे पास इसके कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, सुनी सुनाई बातें हमारे पास मौजूद है। लेकिन अब इस कहानी में एक नया टर्न आया है और नया टर्न इस हवाले से है कि पे दर पे उनके इल्जामात और अभी इन 3 दिनों में उनके इल्जामात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक साबिक रहनुमा हुआ करते थे और यारी गैंगवार के उरूज में उनका बड़ा नाम हुआ करता था, उनका नाम था हबीब चाम। सोशल मीडिया पर एक उनका खत वायरल हो रहा है जिस खत के अंदर उन्होंने जो लंदन की पुलिस है उनसे दरख्वास्त की है कि इमरान फारूक के केस के हवाले से जो सारी गुफ्तगू हो रही है उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास शायद बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं और वो दावा कर रहे हैं कि ये कत्ल में कौन मुलव्विस है, यानी कि अल्ताफ हुसैन पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो अब ऐसा किया जाए, अब उनका मौक़िफ़ सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि ऐसा किया जाए कि जब मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास ये शवाहिद मौजूद हैं तो मुस्तफ़ा कमाल साहब को बुलाया जाए और उनसे इस हवाले से इंट्रोगेशन किया जाए या उनसे उसकी गवाही या शहादत ली जाए। अब सवाल ये बनता है कि क्या वाकई में स्कॉटलैंड यार्ड या फिर वहाँ की इदारे इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब से रुजू करेंगे और मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या उनको शवाहिद देंगे या नहीं देंगे, वो गवाह बनने की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम 2016 के अगर रिपोर्ट्स को देखें जो कि इस वक्त आपको अवेलेबल होगी कि जिसमें खबरें शाया हुई थी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को इस हवाले से क्या स्टेटमेंट था, तो अब वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल साहब को हो सकता है कि तलब किया जाए या फिर स्कॉटलैंड यार्ड ने इस केस को बंद कर दिया है और इसमें अल्ताफ हुसैन साहब को बरी कर दिया या उनके ऊपर शक का इज़हार नहीं किया। अब क्या वाकई में गवाह के तौर पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये बड़ा अहम सवाल है और क्या स्कॉटलैंड यार्ड अब उन्हें बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। दूसरी तरफ इसी हवाले की एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि एक नोटिस एक मुसलसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिसकी आज जंग ने भी खबर दी है। जंग की खबर के मुताबिक MKM के दरमियान अंदरूनी इख्तलाफात शदीद हो चुके हैं और ये इख्तलाफात हम पहले आपको कई बार बता चुके हैं, मगर इस हवाले से हमारे पास एक और बड़ी अहम मालूमात है और बड़ा अहम खबर है। सवाल ये उठता है कि एक नोटिफिकेशन जो जारी किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल से आपसे दूरी इख्तियार की जाए, कि नोटिफिकेशन के बारे में जब हमने मालूमात इकट्ठी की है तो हमारे ज़राए हमारे सोर्सेज इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये जाली है। MKM पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया। हमने इस हवाले से MKM की आला क़यादत से रब्ता किया तो उन्होंने भी इससे कतई तौर पर इनकार किया कि इसमें कोई भी इस तरह का मामला नहीं है। तो अब सूरत हाल क्या बनी हुई है? सूरत हाल ये बनी हुई है कि अब ये दूरी कम नहीं हो रही है बल्कि इसमें इस वक्त शिद्दत आ चुकी है नीचे कारकुनान के हवाले से भी, और अब जंग जैसे अखबारात भी इसे रिपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स अब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं जिस बारे में हम आपको पहले इतला दिया देते थे। अब वहाँ पर ये सिलसिला चल रहा है। अब ये गवाही का ही मसला है कि कुछ लोग इल्ज़ाम आयद करने के बावजूद भी गवाह नहीं बन रहे। यही सूरत हाल यहाँ पर हुई है। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी इसी तरह की गुफ्तगू की जा रही है। पहले खास तौर पर फैसल वाउडा ने इस तरह की गुफ्तगू की थी कि इमरान खान के खिलाफ जो गवाही देंगे वो साबिक जनरल का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अब वो जनरल का ओहदा उनके पास नहीं है, वो पहले ISI के सरबराह हुआ करते थे, अब नहीं है, उनका कोर्ट मार्शल हो चुका है और अब उनके पास इस तरह के ओहदे मौजूद नहीं है। सवाल ये उठता है कि जनरल फैज़ के हवाले से उन्होंने कहा था कि
वो इमरान खान के खिलाफ गवाह बनेंगे। मगर अब एक बहुत अहम स्टोरी सामने आई है और इस स्टोरी में उनके वकील की तरफ से ये बात का दावा किया गया है कि फैज़ हमीद किसी भी तौर पर इस वक्त इमरान खान के खिलाफ गवाह नहीं बन रहे। इन सब को इस तरीके से ही पेश किया जाता रहा है कि इमरान खान और फैज़ हमीद दोनों एक ही सिक्के के दो रुख थे, और जो कुछ भी 9 मई को हुआ और उसके बाद जो पाकिस्तान के मौजूदा फील्ड मार्शल के खिलाफ साजिश हुई थी, उसके भी अहम किरदार इन दोनों को ही कहा जाता है। लेकिन अब एक किरदार दूसरे के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर रहा है या उसके खिलाफ शवाहिद फराहम करने से इनकार कर रहा है, तो दूसरी तरफ मामला ये चल रहा है कि इसी तरीके से एक ही सिक्के के दो रुख थे, यानी एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन थे और उसी के रहनुमा जो है मुस्तफ़ा कमाल थे। तो मुस्तफ़ा कमाल अब यहाँ पर गवाही देंगे या नहीं देंगे, या वाकई में उन्हें गवाही के लिए बुलाया जाएगा। जिस तरीके से जनरल फैज़ हमीद की तरफ से इनकार किया गया है, इसी तरीके से अब देखना ही है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब वाकई में खुद से अपने आप को पेश करके वहां पर गवाही के लिए जाते हैं या नहीं जाते। ये इस वक्त कराची का सबसे इंतहाई अहम मौजू हुआ करता था, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ था, लेकिन अब इसमें एक तब्दीली रोनुमा हुई। अब ये मामला एमक्यूएम लंदन और मुस्तफ़ा कमाल से हटकर, यानी अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम के पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा, यानी पीएसपी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल से हटकर अब ये मामला हो गया है बिटवीन पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान। एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल पर की जाने वाली तवातुर के साथ तनकीद के बाद और मुसलसल तनकीद के बाद जो तनकीद हो रही है, उस सारे मामला से अपने आप को दूर रख रही है। और दूर रखने की वजह ये हरगिज़ नहीं है कि उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब के मुतालिक क्या कहा या क्यों कहा। असल मसला यह है कि इस वक्त अवामी सतह पर पीएसपी फैक्टर के हवाले से जो कुछ भी उनका रद्द-ए-अमल आया, उससे एमक्यूएम पाकिस्तान अपने आप को दूर रख रही है। और ख़ास तौर पर इस बात से कि जनाब इस तरह की तनकीद फिर एमक्यूएम पाकिस्तान को पूरी बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये मामला यहाँ तक ही अभी नहीं रुका है, बल्कि इसमें अभी शिद्दत आना बाकी है। अगले साल की शुरुआत के दिनों में ही कुछ और मजीद पॉलिटिकल तब्दीलियाँ रोनुमा होगी और उस पॉलिटिकल तब्दीली के बाद इस पूरे कॉज पर बड़ा फर्क पड़ेगा। इस सारे मामला ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे ही एमक्यूएम पाकिस्तान और उनके रहनुमा और एमक्यूएम पाकिस्तान को वो हैसियत इस वक्त नहीं दे रही। उनका ख्याल है कि अब एमक्यूएम पाकिस्तान अपने वजूद के ख़त्म कर चुकी है और अब उनकी साख सिर्फ और सिर्फ एक नंबर्स के तौर पर है कि जनाब उनके पास कौमी असम्बली के अंदर इतने लोग हैं, सूबाई असम्बली के अंदर इतने लोग मौजूद हैं, और इस वक्त वो कोई भी अपोजिशन का बड़ा किरदार करने की सलाहियत नहीं रख रही है। ऐसी सूरत हाल में इस पूरी जो टेंशन हुई है उसमें बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को साबित कर रही है कि जनाब वैसे ही ये ख़त्म हो चुके हैं और ख़ुद आपस में लड़कर ये अपने अख्ताम की तरफ जा रहे हैं। अगली खबर और अहम बात क्या है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त शुरू हुआ है, और ये मुश्किल वक्त शुरू इस वजह से हुआ है कि एक तरफ पाकिस्तान के सऊदी अरब से ताल्लुकात हैं और एक तरफ पाकिस्तान के यूएई से ताल्लुक हैं। पाकिस्तान में यूएई के सदर इस वक्त भी मौजूद है और रहीम यार खान के अंदर वो मौजूद हैं, और यहाँ का जो डेजर्ट यानी कि सहराई सर्दी जो होती है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, बाकायदा यहाँ पर मौजूद हैं। कल शहबाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात भी की है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब है। आज पाकिस्तान की आला क़यादत ने सऊदी अरब से भी मुलाकात की है। अब सऊदीया और यूएई के दरमियान पाकिस्तान किस तरीके से सूरत हाल को बैलेंस कर पाएगा इस जंग में, ये एक बड़ा अहम सवाल होगा। लेकिन इससे बड़ी बात यह कि 2025 का साल ख़त्म हो रहा है, और 2025 के साल के ख़त्म होने के साथ ही ये सूरत हाल सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर मुतल्लिका हुकूमत, यानी कि इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है, उसने अपनी ताकत को ग्रो ज़रूर किया है, और उनकी अपोजिशन चाहे वो किसी भी सूरत के हाल इमरान खान की सूरत में मौजूद हो या दीगर की सूरत में मौजूद हो, वो ज़्यादा कमज़ोर हुए हैं। अब इस कमज़ोरी और इस ताकत के दरमियान 2026 किस तरीके से गुजरेगा, क्या वो तमाम लोग के जिनके ऊपर सियासी पाबंदियाँ हैं वो उनको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम अपने अगले वीडियो के अंदर आपको तफसील के साथ बताएंगे कि जनाब क्या हेलो की आवाज़ दोबारा से आएगी या फिर तब्दीली की आवाज़ दोबारा से गूंजेगी। इन दोनों सवालात के जवाब हम आपको तफसील से अपने अगले व्लॉग के अंदर देंगे और आपको बहुत कुछ बताएंगे। अगला अहम मामला यह है, अगला अहम मामला और अगली अहम खबर, मेरे ख्याल से इस वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, हम कोशिश ये करते हैं कि इस गुफ्तगू को यहीं समेटते हैं। अगले प्रोग्राम में हम आपको मज़ीद तफसीलात के साथ करेंगे। याद रखिएगा।